بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ آج کے پروگرام کی صدارت ہم سب کے مخدوم و محترم ملک ہی نہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین استاذ محترم اور اس کورس کے سرپرست حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری صاحب صدارت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اس کورس میں جن اساتذہ نے پڑھایا، جن سے ہم لوگ فیضیاب ہوئے، ان تمام کو زحمت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ وقفے سے سب لوگ شریک ہوں گے۔ فی الحال محترم جناب ملا خالد صاحب شریک ہیں، اسی طرح پروفیسر مصطفیٰ سروری صاحب شریک ہیں، دیگر لوگ بھی جسٹ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور پروگرام کے کو کنوینر کوآرڈینیٹر جناب اعظم شرقی صاحب، جنہوں نے اس پورے پروگرام میں بڑی محنت کی، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جزاکم اللہ خیر مولانا مفتی منور سلطان ندوی صاحب کا شکریہ۔ آج کا یہ پروگرام آخری ہے اور تاثرات پر مشتمل ہے آج کا یہ پروگرام۔ اسی کے ساتھ جو رزلٹ، جو نتیجہ ہوگا وہ اس پروگرام میں ڈسپلے کیا جائے گا۔ میں پروگرام کا آغاز اب باقاعدہ تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے ہمارے کورس کے ایک فاضل اور عالم دین مولانا شہباز صاحب ندوی سے درخواست کروں گا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کریں اور اس پروگرام کی شروعات کریں۔ مولانا شہباز ندوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے برادرم شہباز ندوی صاحب جو تلاوت کلام اللہ سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کر رہے تھے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرح سے ایک ذمہ داری بتائی ہے کہ اے مسلمانوں، صحافت کا ایک طرح سے ایک پیٹرن بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ اگر کوئی خبر آ جائے تمہارے پاس تو اس کی چھان بین کرو، اس کی ریسرچ کرو، تحقیق کرو، تاکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں پشیمان ہونا پڑے گا، نادم ہونا پڑے گا۔ یہ آیت اسی اس میں دلالت کرتی ہے اور مسلمانوں کو ایک صحیح میسج اور پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ اب میں کورس کے ڈیزائنر مولانا مفتی منور سلطان صاحب سے بصد ادب درخواست کروں گا کہ اس کورس کا تخیل اور اس کورس کے بارے میں کہ آپ نے کیا سوچا تھا، اور اس وقت جس وقت کورس کا آغاز کیا تھا اس وقت اس کے کیا نتائج سامنے آئے، اور کتنے طلبہ نے اس میں ایڈمیشن لیا، اور کہاں تک اس کورس کی اہمیت اور کامیابی تک پہنچے ہم۔ اس سلسلے میں آپ تھوڑا روشنی ڈالیں مولانا مفتی منور سلطان ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے اس ذات باری کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں
जिस ने महज अपने फजल व करम से ये तौफीक दी कि कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए। हजरात, असातिज़ा किराम और तलबा, मिल्लत में बहुत से काम हो रहे हैं, मुख्तलिफ महाज़ों पे, मुख्तलिफ फ़ील्ड में अच्छे काम हो रहे हैं और सारे काम काबिल कद्र हैं। नाक़िस मुताले की रोशनी में और मिली मसाइल पर कुछ बोलने और सोचने के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ मैदान अब भी ऐसे हैं जिसमें काम बहुत कम हो रहा है, हालांकि काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वक्त कम है, मैं खुलासे के तौर पे अर्ज़ करूँगा। मेरे नाक़िस मुताले की रोशनी में 2 मैदान कम अज़ कम ऐसे हैं जिन पे काम की बहुत ज़्यादा तवज्जो ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आज के हालात के तनाज़ुर में। उसमें पहला मैदान सहाफ़त का है, जर्नलिज़्म का है कि जर्नलिज़्म में हमारी शिरकत ज़ीरो के बराबर। हम चाहते हैं कि ऐसा हो और ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो असबाब है कि हम जर्नलिज़्म में कहीं नहीं हैं, किसी भी हैसियत से नहीं। ख़ास तौर पर जर्नलिज़्म के मैदान में अफ़राद साज़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एज़ ए प्रोफ़ेशन भी और एज़ ए मिल्ली कॉज़ भी। मिल्ली मसाइल को उठाने के लिए हमारे पास अफ़राद होने चाहिए। मिल्ली मसाइल की तर्जुमानी के लिए हमारे पास ट्रेंड अफ़राद होने चाहिए। अ, ये जो सहाफ़ी होते हैं, ये सिर्फ़ उनका एक पेशा नहीं होता है, बल्कि मसाइल पर उनकी गहरी नज़र होती है और वो मिल्लत की एक अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये अ, अगर इस तरह अफ़राद तैयार किए जाएँ सहाफ़त के मैदान में, तो न सिर्फ़ ये मिल्लत की तर्जुमानी होगी, बल्कि यही अफ़राद आइंदा मिल्लत की बेहतरीन क़यादत कर सकते हैं। क़यादत बड़ा बदनाम लफ्ज़ है, खूब हम लोग क़यादत पे बातें करते हैं, लेकिन अफ़सोस कि क़यादत को पैदा करने के लिए कोई माक़ूल कोशिश नहीं होती है हमारी तरफ से। अल्लाह का शुक्र है कि मिल्लत बाँझ नहीं है, अफ़राद हर ज़माने में पैदा हुए हैं, हर इलाके में पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम मिल्लत की क़यादत की आबियारी करते, कायदीन तैयार करते। कायदीन तैयार किए जाते हैं बाज़ाब्ता। हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा कि ख़ानदानी निज़ाम, इदारा जाती निज़ाम की बुनियाद पे लोग खुद ब खुद कायद बन जाते हैं और लोग मान भी लेते हैं। मुझे इस पे तबसरा नहीं करना है, लेकिन एक बड़ा काम है कि कायदीन को तैयार करने का। कायदीन बड़ा लफ्ज़ है जो नौजवान हैं, बासलाहियत नौजवान, ज़हीन नौजवान, उभरती हुई सलाहियत के हामिल अफ़राद, अगर उनको ट्रेंड किया जाए, अगर उनको बाज़ाब्ता मश्क़ के मरहले से गुज़ारा जाए, तो आइंदे के लिए एक बेहतरीन सरमाया तैयार हो सकता है। हमारे मुल्क में इसकी तरफ बड़ी कमी है, लेकिन मुझे याद आता है कि आलम अरब में ताहीलुल क़ियादा के नाम से बाज़ाब्ता कोर्सेज़ डिज़ाइन हैं और इस तरह के मुस्तकिल प्रोग्राम होते हैं और कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जिससे अफ़राद बेहतर तौर पे तैयार होके सामने आते हैं। तो एक बड़ी कमी जिसका एहसास मुझे बार-बार हुआ और आज भी हो रहा है और इस कोर्स को डिज़ाइन करने की एक बड़ी वजह ये थी। दूसरा एक बड़ा मैदान है जिसमें हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं है या बराए नाम है, वो है लॉ का मैदान, कानून का मैदान। मुसलमानों की बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर वो अ, हालात से लड़ना चाहते हैं और मुनासिब अंदाज़ में लड़ना चाहते हैं, तो उनको पहले कानून से लैस होना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे कानून-दां होने चाहिए कि जो हमारे मसाइल को हल कर सकें। कानून के मैदान में अफ़राद-साज़ी की बड़ी ज़रूरत है और सहाफ़त के मैदान में अफ़राद-साज़ी की बड़ी ज़रूरत है। जो ज़रूरत है उसके मुकाबले में मतलब एक समंदर का ये तिनका भी नहीं है ये कोशिश, लेकिन मुझे खुशी है और अल्लाह का बार-बार शुक्र अदा करता हूँ कि ज़हन में बात आई, अल्लाह ने ये बात डाली और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो चीज़ हो गई। इसमें यकीनन अल्लाह के बेपनाह फ़ज़ल व करम और हमारे तमाम असातिज़ा की दुआओं और जो लोग शरीक नहीं थे, उनकी भी दुआओं के साथ जिन असातिज़ा ने वक़्त दिया, जिन असातिज़ा ने अपनी रहनुमाई से हमें फ़ैज़याब किया, जिन असातिज़ा का ताउन हमें शामिल रहा, वो तमाम अफ़राद की मेहनतों के बाद अल्लाह का शुक्र है कि हम इस कोर्स को मुकम्मल कराने में कामयाब हुए। जब कोर्स का ऐलान किया, हमें उम्मीद थी कि हमें 10 तलबा मिल जाएँ तो हम कोर्स शुरू कर देंगे। जब ये तादाद 25 को पहुँची तो हमारी खुशी बहुत ज़्यादा हुई और ये फिर तादाद
अल्हम्दुलिल्लाह 57 तक पहुंची। 57 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया इस कोर्स में। हालात, मसाइल, खुद टेक्नोलॉजी के मसाइल, इंटरनेट के मसाइल, और फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए तो शाबान करीब आया और मदारिस के इम्तहानात शुरू हो गए। तो इन तमाम मराहिल से गुजरने की वजह से जो तादाद हमें ज्वाइन कर सकी थी शुरू में, उसका तसलसल तो बाकी नहीं रहा। अलबत्ता ये अच्छी खबर है कि 25 से 30 तलबा मुसलसल यानी गोया इस 50 लेक्चर्स में तकरीबन शरीक रहे, और आखिर में हस्ब वादा टेस्ट भी लिया गया और टेस्ट में 22 तलबा और तालिबात शरीक हुए। तो मैं अल्लाह का फजल समझता हूँ कि अल्लाह का फजल है कि ये कोर्स जिसका हमने सोचा था ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। ये कितना मुफीद हुआ ये तो अभी आप हजरात बताएंगे, लेकिन मैं अपनी हद तक ये कहता हूँ कि खुद मुझे इस कोर्स से बड़ा फ़ायदा हुआ, और इतने लोगों से हमारी मुलाकात, और सिर्फ टॉप के जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों का जो ताउन रहा और उनकी जो हौसला अफजाई रही, मैं खुद इसको भी कामयाबी समझता हूँ। तो वक्त कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। गुफ्तगू तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आज का जो मेन प्रोग्राम है वो है फीडबैक का, आपके तासुरात का। तो मौलाना आज़म शर्की साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ मुंतखब तलबा और तालिबात को फीडबैक के लिए बुलाएं, ताकि हम उनके तासुरात को सुनें, और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ जो असातिज़ा बैठे हैं यहाँ पे वो भी मुख्तसर तासुर का इजहार करेंगे, और रिजल्ट इंशाअल्लाह आप लोगों को पेश किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान नदवी साहब। तासुरात जिन तलबा पर हैं यहाँ पे अभी जो पेश करेंगे तासुरात, उसमें डॉक्टर मोहतरमा तबस्सुम साहिबा हैं, और मारिफा और फिज़ा जाहिद, इसी तरह मौलाना इरफान साहब हैं और अज़जद हसन साहब हैं। मैं सबसे पहले मोहतरमा डॉक्टर तबस्सुम साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। To the respected dignitaries and guests, I would like to say that the Safa online journalism course was a very well planned and well designed course, which was intended to help the students learn the basics of journalism. The smooth functioning of this session was possible by the tireless effort of very able, learned, and experienced experts of this field. We benefited a lot from the useful tips learned from this session. I would like to humbly put forth 2 suggestions for any forthcoming journalism class in case we plan for future. Firstly, the medium of instruction can be Urdu, no problem. But the important terms, in fact, sometimes even the simple terms should also be mentioned in English. Secondly, it would be nice if the students could get some kind of written notes from which we could study and understand better. Because sometimes we miss some lectures or part of a lecture due to unavoidable circumstances like network issue and so on. So very short but written notes would definitely help. Lastly, I thank the Safa online team for their invaluable time and able guidance. Jazakallah khair and thank you so much. और इसी के साथ अब मैं दूसरी तालिबा मारिफा से मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर वो आज की मीटिंग में मौजूद हैं तो अपने तासुरात बयान करें। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मारिफा तस्नीम। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मुनव्वर सर और आज़म सर की, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं BSc एंड CND पास आउट हूँ एमडीटी कॉलेज मुजफ्फरपुर से। आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे जर्नलिज्म से क्लास करने का मौका मिला, जिन्होंने मुल्ला खालिद सर, डॉक्टर शाह फैसल, मुस्तफा सर, अकरम सर, हुदा सर, साहिद लतीफ़ सर और सब सर जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आगे कुछ करने का उन्होंने बताया सफा ऑनलाइन टीवी के बारे में। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
سب سے پہلے تو میں آن لائن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جس کے ذریعے سے ہمیں اس کورس کا حصہ بننے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ان تمام ٹیچرز کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم تک بہت سی مفید باتیں پہنچائی، ہماری سوچ کو ایک نیا رخ دیا اور ہمارے ذہن میں پیدا ہوئے بہت سے آڑے ترچھے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا۔ اس کے علاوہ میں اس پروگرام کے آرگنائزر کی بہت بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک علم کا ساگر ڈھونڈ کر لائے، جو ہمارے لیے جنہوں نے اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں سیراب کیا۔ We look forward to more such courses. Thank you, Safa Online. Thank you all my respected teachers. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ میں برادرم اسجد حسن کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے تاثرات کا اس ذرے موقع پر اظہار فرمائیں۔ اسجد حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے صفا آن لائن کی طرف سے منعقد ہونے والے یہ آن لائن جرنلزم کورس، جو مختصر وقت میں بہت ہی مفید رہا، کیونکہ شروع میں جب یہ کورس شروع ہوا تھا تو سب کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اس مختصر سے وقت میں ایک وسیع موضوع جو صحافت ہے، اور جو صحافت کا لفظ ہی سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی وسیع اور مختلف پہلوؤں کو لیا ہوا یہ موضوع ہے، تو اس اعتبار سے شروع میں لگا تھا کہ یہ موضوع کافی وسیع ہے اور اس وقت میں بہت مشکل ہوگا، اور سبوں نے یہ کہا تھا، لیکن اس مختصر وقت میں جو یہ ڈیزائن کیا گیا تھا، کورس ڈیزائن کیا گیا تھا، اس کو بہت ہی بہترین انداز سے اور بہترین لیکچرر کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے میں صفا آن لائن کے آرگنائزر اور اس کورس کے آرگنائزر اور مولانا منور سلطان صاحب ندوی اور اسی طرح مولانا اعظم صاحب شرکی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، دونوں کا ہی بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، اور اسی طرح ان دونوں نے جو اور ہندوستان کے مشہور و معروف صحافیوں کا انتخاب کیا جو بہت ہی صلاحیت مند اور اس فن کے ماہرین تھے، ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا سمجھا اور بہت ہی بہترین انداز سے ہر ٹاپک پر لیکچر دیا۔ چونکہ یہ لیکچر وائز کورس تھا، میٹ دیا گیا ہے، اسی وجہ سے لیکچر کی وجہ سے اس مختصر وقت میں صحافت کے مختلف عنوانات پر یعنی روشنی ملی اور اس کی بنیادوں سے اور ان کی بنیادی چیزوں کو جاننے کا موقع ملا۔ اسی طرح اس مختصر کورس میں تمرینات کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ہم لوگوں کی طرف سے زیادہ توجہ نہیں ہوئی، لیکن ادھر سے پورا نظم کیا گیا تھا اور اس کو منظم بھی کیا گیا تھا۔ اسی لیے میں ان تمام چیزوں کے پیش نظر ایک میں یہ کہوں گا کہ یہ مختصر سے وقت میں یہ کورس بہت ہی مفید تھا۔ جو آدمی صحافت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے ان کے لیے یہ ایک مشعل راہ کورس ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا۔ بہت بہت شکریہ برادرم اسجد حسن صاحب۔ اسی طرح میں عرفان صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ جوائن ہو چکے ہوں تو اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو جان پائے، اور شروع میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اس سے کیسے آن لائن یہ تعلیم اور پھر صحافت جب تک اس کو اگر فیلڈ میں نہ ہم آئے تو کیسے ہی حاصل کر پائیں گے، لیکن واقعی جب ہم لوگ دیکھے سب سے بڑی خوبی ہمیں یہ لگی۔ بہت شکر گزار ہوں صفا آن لائن کے جانب جو یہ شروع کی گئی، میں اس میں تمام اساتذہ اکرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک مسلم قوم کے لیے ایک اچھے پلیٹ فارم لے کر آئے، اور بہت کم سمے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ چونکہ آپ لوگوں نے یہ پہل کی، چونکہ اوروں کو یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ اس میں جوائن ہو پائے، لیکن جنہوں نے بھی جوائن کیا اس کے طرف سے اچھے ایک فیڈ بیک آئی ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ہی سے اس کورس کے اس فیلڈ میں ہے، ہم نے پترکارتا کرتے ہوئے اتنا گیان نہیں تھا جب میں پترکارتا کر رہا تھا، لیکن ہم نے اس میں جو موٹی موٹی باتیں جو سیکھی اس سے ہم کو بہت زیادہ اس میں ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ کلاس ہمیشہ چالو رہے، اور میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔
جی نصر ظہور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. نصر ظہور. جی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی مظفر سلطان ندوی صاحب کا اور صفا آن لائن ٹیم کا کہ انہوں نے جرنلزم کو سمجھنے اور سیکھنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا. اور حالانکہ اب تک ہم لوگ سنتے آ رہے تھے ہم طلبا کہ جرنلزم ایک چیز ہے, صحافت ایک چیز ہے, اور مختصراً پڑھ کر گزر جاتے تھے اخبارات اور نیوز وغیرہ دیکھ کر. لیکن اس کورس میں شرکت کے بعد بہت سی اس کی باریکیاں معلوم ہوئی, اس کے فوائد معلوم ہوئے, اور اپنے جذبات کا اظہار کس سلیقے سے کیا جانا چاہیے قلم کے ذریعے سے وہ معلوم ہوا. اور سب سے بڑی چیز قلم کی طاقت کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے ہمارے اساتذہ نے سمجھایا اور قلم کے استعمال کا طریقہ بتایا, کس طریقے سے حسن تربیت سے الفاظ مرتب کیے جائیں اور کس طریقے سے اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کیا جائے اور کس طریقے سے عوام میں بیداری پیدا کی جائے, اور آگے بڑھ کر جو ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی اسی فیلڈ سے کس طریقے سے انجام دیا جائے. یہ تمام چیزیں اس کورس سے ہمیں پتہ چلیں, اور مختصراً یہ کہ بہت زیادہ اس کا فائدہ الحمدللہ ہوا. اتنی قلیل مدت میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کورس شاید پہلے کبھی ہوا ہو. تو میں دل سے بہت ممنون و مشکور ہوں مولانا کا, اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کورس کو آگے بڑھائیں. اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے کہ وہ اس سے بڑھ کر کوشش کریں اور ہم طلبہ کے لیے اور بھی میدان فراہم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. میں ایک بات اور یہاں واضح کر دوں, آپ طلبہ میں سے اکثر نے میرا شکریہ ادا کیا ہے. اصلاً یہ شکریہ ان تمام اساتذہ کے نام ہے جنہوں نے بڑی محنتوں سے پڑھایا اور ہم سب کو فائدہ پہنچایا. ظاہر سی بات ہے طلبہ مجھ سے زیادہ واقف رہے اس لیے وہ میرا نام لے رہے ہیں, ورنہ حقیقتاً یہ شکریہ تمام اساتذہ کے نام ہے. جی اس وقت ہمارے اسکرین پہ کئی نام موجود ہیں. زرین نبی احمد, آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ آن لائن کورس میں حصہ لے پائے. تو صفا آن لائن کا بہت بہت شکر ہے کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں. تو اس کورس کے ذریعے ہم نے نہ کہ صرف مطلب بہت زیادہ اس کورس نے نہ کہ صرف ہمیں بہت سکھایا بلکہ حوصلہ افزائی بہت زیادہ کی ہے اس کورس میں. اور اتنے کم وقت میں اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا ایسا سوچا نہیں تھا, لیکن اس کورس کا جو اپروچ تھا وہ بہت ہی پریکٹیکل تھا. تو اب پتہ نہیں کہ ہم جرنلسٹ بنے نہ بنے, لیکن میری خبریں پڑھنے کا طریقہ اور نظریہ ضرور بدلا ہے. تو ہم دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ملا خالد سر کا جنہیں ہمیں بہت پریکٹیکلی بہت کچھ سکھایا. آر جے عامر احسان سر کا جنہیں نے آواز کے انداز سکھائے. پروفیسر مصطفیٰ سروری سر اور شاہد لطیف سر اور باقی تمام وہ پروفیسر جنہیں نے اپنا قیمتی وقت ہم سب کو دیا اور کافی کچھ سکھایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا قلم سے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب ہمارا قلم وہ جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہو یا پرنٹ میڈیا میں ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو, اس سے ہمیشہ انشاءاللہ سچائی لکھی جائے گی. تو وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. شہباز عالم, اپنے تاثرات کا اظہار کریں. شہباز عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے کورس کے تعلق سے استاد محترم مولانا منور سلطان ندوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے صحافت اور جرنلزم کورس ہم اسٹوڈنٹس کے لیے آرگنائز کیا. اور الحمدللہ مائک کو میوٹ کرنا ہے. الحمدللہ اس کورس سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں سبھی طلباء کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت اس کورس کی یہ رہی کہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ اور جو ریناؤنڈ جرنلسٹ تھے
जर्नलिज्म के जो एक्सपर्ट थे उनको एक इस प्लेटफॉर्म पर हजरत मौलाना ने जमा किया। ये एक बड़ी खसूसियत थी इस कोर्स की। वैसे नॉर्मली हम जैसे एक्सपर्ट से हम मिल नहीं सकते थे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना हुआ कि हम इनसे मिले हुए हैं और हमने इनके लेक्चर सुने सामने सामने फेस टू फेस, तो हम एटलीस्ट इनसे वाकिफ हो गए और इनको जान गए कि ये किस फील्ड में काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खसूसियत इस कोर्स की ये रही कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिला कि हम कुछ कर सकते हैं। हम किसी भी फील्ड में हम अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं, चाहे वो जर्नलिज्म का मैदान हो, चाहे माशियात का मैदान हो, किसी भी फील्ड में हम अपना रोल अदा कर सकते हैं अगर हम चाह लें तो। और इसके लिए हमें किसी अपने शियार को बदलना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम जो जिस मैदान के हैं या हम जिस फील्ड से आए हुए हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, इस बैकग्राउंड को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम मदरसा बैकग्राउंड से हैं, लिहाजा हम जो है किसी दूसरे फील्ड में हम जो है अपनी खिदमत अदा नहीं कर सकते। हमें इस कोर्स से ये मोटिवेट मिला कि हम अपनी इस शहर में रहते हुए भी, अगर हम मदरसा बैकग्राउंड के हों तो हम इस शहर में रहते हुए भी हम इस फील्ड में हम रोल अदा कर सकते हैं, और लोगों ने अदा किया है और कर रहे हैं। तो मैं मुनव्वर सुल्तान साहब और जिन्होंने हमें लेक्चर्स दिए इस कोर्स के दौरान, उनका, और आखिर में मौलाना शरफ़ी नदवी साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस कोर्स में बहुत अहम रोल प्ले किया, बहुत अच्छे से इस कोर्स को ऑर्गेनाइज़ किया, टाइम टेबल मैनेज किया, और हमारे लिए हर वक्त मुहैया रहे जिस वक्त भी हमें ज़रूरत पड़ी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद हैं वक़ार अहमद। वक़ार अहमद मुख्तसरन अपने तसुरात का इजहार करें। उसके बाद शाहिद बशीर हैं, ये भी अपने तसुरात का इजहार करेंगे, और फिर हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे जल्दी। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बेहतर मौका फराहम किया हमारे लिए कि हम सफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए से जर्नलिज्म का ऑनलाइन कोर्स करने का मौका मिला। उसके बाद हम अपने तमाम असातिज़ा का शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने अपनी कीमती औकात निकाल कर हमें ऐसी बातें पहुँचाई हम तक जिनसे हम गालिबन हम नावाकिफ़ ही थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिला जो इस वक्त हमारे लिए हमारी ज़रूरत थी, ख़ास तौर से मदारिस के तलबा के लिए। और साथ ही साथ इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला, और मज़ीद ये कि इसके बारे में जब हमने अपने साथियों से, अपने दोस्तों से इसका तज़किरा किया तो वो लोग भी इससे बहुत मुतासिर हुए, और उन लोगों ने भी ये कोर्स करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो मेरी राय ये है, सफ़ा ऑनलाइन के ज़िम्मेदार से राय है, मशवरा है कि इस कोर्स को जारी रखें। इंशाअल्लाह हम तलबा के लिए बहुत ही मुफीद और कारगर साबित होगा। सिराज अहमद स्क्रीन पे मौजूद हैं। सिराज अहमद अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ सफ़ा ऑनलाइन का। इसके बाद जितने भी असातिज़ा इकराम है जिन्होंने हमारा क्लास करवाया, उन लोगों का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सहाफ़त से मुझे पहले से ही शौक़ रहा, और इस शौक़ में मैंने कई सारे चैनल भी खोला, लेकिन उसपे मेरी जो आवाज़ की लुकनत थी और कई सारी कमियाँ थी, अब वो सुधरते जा रही है। और इंशाअल्लाह इस कोर्स से ये बहुत सारे फ़ायदे हुए, और चाहता हूँ कि इस फ़ायदे को आगे बढ़ाएँ और लोगों के सामने दिखाएँ, ताकि मेरे ज़रिए सफ़ा ऑनलाइन भी एक लोगों में पहुँचे कि मैंने सफ़ा ऑनलाइन से ये चीज़ सीखी है और यहाँ से मुझे ये चीज़ सीखने को मिला है। शाहिद बशीर जम्मू कश्मीर से हैं। इन्होंने भी पाबंदी से इसका मतलब ज्वाइन किया। आपको क्या फ़ायदा हुआ शाहिद बशीर साहब, बताएंगे ज़रा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
यकीनन सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा, और उसके बाद जनाब मौलाना मुनव्वर सुल्तान नदवी साहब और मौलाना आज़म शर्की साहब का कि उन्होंने हमारे लिए ये रास्ता फराहम किया, और उसके बाद उन लोगों का जिन्होंने इसमें एक अहम रोल अदा किया है, वो हमारे लेक्चरर जो इसमें आते रहते थे, इंडिया के माया नाज साहबियों को आपने यहाँ पर मदऊ किया, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा हमने उनसे सीखा, और बहुत चीज़ें जिनको हम आम समझते हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर आरजे आमिर साहब, मुल्ला खालिद साहब, बाकी तमाम हुजरात, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ, और जब से मैंने इसके साथ ज्वाइन किया उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में भी जाता हूँ, वहाँ से भी उन लोगों से भी कुछ चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा शौक मिला, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी मैं इसी पर बरकरार रहूँगा और सच्चाई के साथ इस काम को करूँगा। एक तासुर आया है शहजी खान जो फिरोजाबाद से हैं, इस वक्त वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो शरीक हैं, सुन भी रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को लाइव भी कर रहे हैं, उसमें मसरूफ़ हैं। उन्होंने अपना तासुर भेजा है और उनकी ख्वाहिश है कि उनके तासुर को पढ़ के सुनाया जाए। तो वो लिखते हैं, ये कोर्स इतना उम्दा रहा कि उसको एक पैराग्राफ में बयान करना नामुमकिन है। अलबत्ता वो 5 चीज़ों को बताना चाहूँगा जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। नंबर 1, टॉपिक के लिहाज से असातिज़ा का बेहतरीन इंतखाब। नंबर 2, असातिज़ा के पढ़ाने का बेहतरीन अंदाज़। नंबर 3, तलबा के लिखने, सुनने और वक्त की सहूलियात का ख्याल। नंबर 4, लेक्चर के बाद सवाल व जवाब का सेशन। नंबर 5, तलबा में जोश, बेदारी और जर्नलिज्म का शौक़ दिलाना। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मैं जर्नलिज्म के अलिफ बा के बारे में भी वाकिफ़ नहीं था। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐसी बातें मालूम हुई जिसको हम कोर्स ज्वाइन किए बगैर नहीं हासिल कर सकते थे। शहजी खान, फिरोज़ाबाद। अब आखिरी एक तासुर है इस कोर्स की, एक अजीज़ा फ़िज़्ज़ा ज़ाहिद ने अपने असातिज़ा के लिए एक नज़्म तैयार की है, तो मैं चाहता हूँ कि वो नज़्म पेश करें फ़िज़्ज़ा ज़ाहिद। वो उस्ताद मोहसिन, वो उस्ताद राहबर, वो माँ बाप के बाद सबसे बुलंदतर। वो उस्ताद मोहसिन, वो उस्ताद राहबर, वो माँ बाप के बाद सबसे बुलंदतर। हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम उन पर। हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम उन पर। वो उस्ताद मोहसिन, वो उस्ताद राहबर, वो माँ बाप के बाद सबसे बुलंदतर। है उस्ताद मोहसिन, है उस्ताद राहबर, है माँ बाप के बाद सबसे बुलंदतर। है उस्ताद इस कौम के एक सिपाही, के जंग जिंदगी की है लड़ना सिखाई। ना उस्ताद का मर्तबा मुझसे पूछो, जो है पास मेरे है उनकी बदौलत। है उस्ताद मोहसिन, है उस्ताद राहबर, है माँ बाप के बाद सबसे बुलंदतर। हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम उन पर। हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम, हो सलाम उन पर। अंधेरे में वो है दिया रोशनी का, कड़ी धूप में वो घना एक साया। अंधेरे में है वो दिया रोशनी का, कड़ी धूप में वो घना एक साया।
صحیح اور غلط کا فرق جس نے بتایا، میں بھٹکوں اگر راہ جس نے دکھایا، جہالت کی دلدل سے ہم کو بچایا، دیا علم کا ہے دلوں میں جلایا، وہ استاد محسن، وہ استاد رہبر، وہ ماں باپ کے بعد سب سے بلندر، ہو سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام ان پر، ہو سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام ان پر، خدا کر دے پوری جو مانگے دعا وہ، انہیں دو جہانوں کی خوشیاں عطا ہو، خدا کر دے پوری جو مانگے دعا وہ، انہیں دو جہانوں کی خوشیاں عطا ہو، تمنا ہے فضا کہ بس اتنی یا رب، رہے سایہ قائم صدا ان کا مجھ پر، وہ استاد محسن، وہ استاد رہبر، وہ ماں باپ کے بعد سب سے بلندر، ہو سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام ان پر، ہو سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام ان پر، ہو سلام ان پر۔ یہ مختصر تاثرات اور بھی کچھ طلبہ ہیں جو شریک نہیں ہو پائے، لیکن جو بھی شریک ہوئے بہرحال انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ قبل اس کے کہ رزلٹ کا اعلان کیا جائے اور اپنے اساتذہ سے کچھ آخری گویا ایک الوداعی گفتگو سنا جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان تمام محسنوں کو یاد کروں، ان تمام اساتذہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کروں، ایک پروگرام آرگنائزر کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، تمام طلبہ کے نمائندہ کی حیثیت سے، جن سے ہم فیضیاب ہوئے، پوری طرح فیضیاب نہیں ہو سکے، اس میں کچھ اپنی کمی رہی، کچھ انتظامی کمی رہی، کچھ ٹیکنیکل پرابلم رہے، لیکن اس سب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ کا شکر ہے، اور میں اس کورس کا بڑا فائدہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحافت کے میدان کے وہ چوٹی کے لوگ ملے، ان کی محبتیں ملی، ان کی توجہ ملی، ان کی رہنمائی ملی، جس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا جناب شاہد لطیف صاحب کا، ایڈیٹر روزنامہ انقلاب ممبئی، جنہوں نے قدم قدم پر حوصلہ افزائی کی، جناب ملا خالد صاحب کا، جب بھی ان کو آواز دی تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ملے اور انہوں نے رہنمائی کی، بلکہ کبھی کبھی لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ فکر مندی انہیں ہو رہی ہے اس کورس کے بارے میں۔ ایسے لوگ یقیناً شکریہ کے مستحق ہیں ہم تمام کی طرف سے، ملت کی طرف سے، کہ ملت کی فکر مندی جو ہم نے جناب شاہد لطیف صاحب اور جناب ملا خالد صاحب میں دیکھی، اب تک ایسے لوگ ہمیں کم ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی صحت کو مزید باقی رکھے اور ملت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب، کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن جب تعارف ہوا تو اتنی محبت سے ملے کہ لگے کہ وہ بھی واقعی میرے ہی کوئی استاد ہوں، اور جس طرح انہوں نے پڑھایا ایک بہترین استاد کی حیثیت سے، وہ واقعی قابل داد تھا۔ ایک استاد کو جس طرح ہونا چاہیے، میں نے ان سے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح استاد پنکچول بھی ہوتا ہے، کلاس کے ماحول کو خوشگوار بھی رکھتا ہے، کچھ تفریحیں بھی ہوتی ہیں لیکن نظریں ٹکی ہوتی ہیں موضوع پہ، موضوع سے کہیں وہ بھٹکتے نہیں ہیں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ان تمام موضوعات کو کور کیا جو ان کو دیا گیا تھا۔ اسی طرح
जनाब प्रोफेसर जावेद साहब गुलबर्गा से, उनकी मोहब्बतें भी पहले दिन से मुझे हासिल रही और ETV उर्दू में काम कर चुके हैं। इस वक्त वो गुलबर्गा में हैं। उन्होंने भी न सिर्फ साथ दिया बल्कि अपना बेशकीमत ताउन हमें दिया। इस तरह जनाब विशाल आज़म साहब ETV उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बतें दी। जनाब डॉक्टर आदम साहब जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर हैं, उनका ताउन हमें हासिल रहा। इसी तरह लखनऊ के एक मशहूर सहाफ़ी जनाब कुतुबुल्लाह नदवी साहब, राष्ट्रीय सहारा के साबिक़ एडिटर और इस वक्त अखबार मशरिक़ के एडिटर और मुख्तलिफ़ TV चैनलों में काम कर चुके हैं वो। इसी तरह जनाब अहरारुल हुदा शम्स नदवी साहब, जनाब सिब्तैन फलाही साहब ETV भारत से, और जनाब सईद खान साहब रोज़नामा इनकलाब, और हमारे दोस्त और अजीज़म कहना चाहिए, लेकिन वो माशाल्लाह जिस उस पे फ़ाइज़ हैं और जिन सलाहियतों के हामिल हैं, RJ आमिर साहब, बड़ी सादतमंदी का उनका इजहार मुझे शर्मिंदा करता रहा कि जब भी मैं कुछ कहता तो वो सर झुका लेते थे। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने न सिर्फ हमें वक्त दिया बल्कि हमारी हौसला अफजाई की। जनाब मुफ्ती साजिद फलाही साहब, इसी तरह मुफ्ती उमर आबिदीन साहब, और फिर दो अहम शख्सियत, हमारे दो अहम बुजुर्ग जनाब मौलाना अलाउद्दीन नदवी साहब, नदवी के उस्ताद हैं, और मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना नज़रुल हफीज़ नदवी अजहरी साहब। ये वो लोग हैं कि जिनके बगैर हमारा ये सफ़र नामुकम्मल होता। हमने ख्वाब ज़रूर देखा था, लेकिन ख्वाब में रंग भरने में जिन लोगों की दुआएं, जिन लोगों की मेहनतें शामिल हैं, ये वो लोग हैं। मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ किया जाए। इस तरह एक पूरी टीम अल्लाह के शुक्र से इस उन्वान पे जमा हो गई और फिर हम लोगों ने मिल के इस कोर्स को मुकम्मल कराया। ये मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं था, एक आगाज़ हम इसको कह सकते हैं, एक हुस्न आगाज़ कह सकते हैं। अल्लाह ताला का फजल है कि ये एक पहला कदम इस जानिब है। अब तक के तासुरात आप तलबा के भी और जिन लोगों से हमारी बात हुई उन लोगों ने भी इसको एक वक्त की ज़रूरत करार दिया। यकीनन सहाफ़त के मैदान में अफराद साजी की बड़ी ज़रूरत है। हमारी ये कोशिश उसमें समंदर में कतरे के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम उसे अपनी तरफ से एक आगाज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि खुद जो तलबा शामिल हैं ये आइंदा बहुत कुछ करेंगे इंशाअल्लाह, इनके ज़रिए से मिल्लत को फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, और अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के कोर्सेज़ आइंदा मज़ीद मुनक़िद हुए तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये शुक्रिया के कलमात थे जिन सबों ने ताउन किया, जिनका नाम आया हो या ना आया हो। एक नाम बल्कि दो नाम और छूट रहे हैं, दो अजीज़म हैं। एक जनाब आज़म शर्की साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे इस प्रोग्राम के, बड़ी जद्दोजहद और मेहनत के साथ लगे रहे, और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं मौजूद नहीं, लेकिन मैंने कहा कि भाई आज़म शर्की मियाँ हमारे छोटे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ संभालिए, और उन्होंने वाकई संभाला। तो मैं समझता हूँ कि दीगर सारे इल्मी फ़ायदों के साथ ये जो एक क़ियादत का मरहला था कि अगर फर्स्ट लाइन के लोग गायब हों तो सेकंड लाइन के लोग संभाल सकते हैं, ये तजर्बा भी बहुत ज़रूरी था और ये तजर्बा उन्हें हुआ। इसी तरह हमारे टेक्निकल सपोर्टर रहे जनाब शहजी खान साहब, उन्होंने भी मुस्तकिल सपोर्ट किया, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दो और अजीज़ हैं, एक अजीज़म ज़ीशान नदवी ETV उर्दू में काम करते हैं। वो रस्मन तो कभी हमारे साथ नहीं आए, मैंने कई बार कहा, उन्होंने 2 हर्फ मुझसे पढ़ा है, मैं उसका ज़्यादा वसूल करता रहता हूँ उनसे। कोई भी मशवरा हो तो मैं उनसे तकल्लुफ़ मशवरा करता हूँ, और एक छोटे की हैसियत से नहीं बल्कि दोस्त की हैसियत से बात करता हूँ और अपने मसाइल को डिस्कस करके हल करने की कोशिश करता हूँ। तो मुस्तकिल उनका ताउन रहा। शुरू में वो शरीक थे, इस वक्त वो शरीक नहीं हैं, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। इसी तरह एक और अज़ीज़ और मेरा भांजा अज़ीज़ी शरफ़ आलम नदवी, उन्होंने मेरे मशवरे से मौलाना आज़ाद में उन्होंने सहाफ़त का कोर्स किया, कुछ दिनों ETV भारत में काम किया, और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ताउन भी हमें हासिल रहा। और इस तरह और दीगर तमाम लोग
जिनका किसी भी लम्हे किसी भी उसमें हमें ताउन हासिल रहा, हम उन तमाम के शुक्रगुजार हैं दिल की गहराइयों से, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और असल बदला उनको अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, अपने फजल से अता फरमाएंगे। एक चीज़ आखिरी, ये प्रोग्राम सफ़ा ऑनलाइन फाउंडेशन की तरफ से हुआ था। सफ़ा ऑनलाइन फाउंडेशन का कभी तारुफ नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि यही तारुफ काफ़ी है, उनकी तरफ से ये काम हो सका। सफ़ा ऑनलाइन टीवी जो यूट्यूब चैनल है, ये सफ़ा ऑनलाइन फाउंडेशन का हिस्सा है। इस फाउंडेशन के जिम्मेदारों में जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, तबीयत ख़राब है उनको शिरकत करनी थी, वो मौजूद नहीं है। इसी तरह और कई हज़रात जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, वो सब हमारे काम में कहीं न कहीं शामिल रहे, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दोस्त आरजे आमिर साहब नज़र आ रहे हैं हमें। मैं चाहता हूँ कि चंद जुमले उनके आज के प्रोग्राम के हवाले से होने चाहिए। उनके भी माशाअल्लाह बड़ी कोशिशें हैं। मुझे इस लिहाज से भी खुशी हुई कि इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोग मिले कि बज़ाहिर हमें तो लग रहा था कि दूसरे मैदानों में हैं, लेकिन मदरसे का कमाल हमें नज़र आया कि लोग मुख्तलिफ मैदानों में हैं, ख़ास तौर पे नदवी फजला, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद है। मिल्लत के लिए जब भी कुछ मिलता है, वक्त मिलता है, तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। आमिर साहब ने जब ये बताया कि मुजाहिदीन आज़ादी पे उन्होंने एक पूरी सीरीज़ तैयार की है अपनी आवाज़ के ज़रिए से। जाहिर सी बात है, आरजे हैं, वो आवाज़ के बेहतरीन आवाज़ रखते हैं वो, और आवाज़ से ही वो लोगों ये छोड़ चुके हैं अगरचे, अब दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने ये बड़ी सलाहियत दी है और उन्होंने बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 मिनट में कुछ अपने तअस्सुरात का इजहार करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। प्रैक्टिकल फील्ड में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जो है हाथ होता है कामयाबी के लिए। सो अगर कम्युनिकेशन कोई भी ज़ुबान जो आप ज़ुबान जानते हैं जिसमें आप माहिर हैं, उसके साथ साथ दूसरी एक कोई भी ज़ुबान आप ज़रूर सीखें, और ख़ास करके अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र आएगा। तो सफ़ा ऑनलाइन के जो बैकग्राउंड में टीम है, जो हमारे सीनियर असातिज़ा का जो हौसला है, उनकी जो दुआएं हैं, मैं उन सभी के लिए जो है उन सभी का शुक्रगुजार हूँ, और सफ़ा ऑनलाइन टीम का शुक्रगुजार हूँ। मैं 2 मिनट के लिए जनाब मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब, जो सफ़ा ऑनलाइन टीवी में न सिर्फ शामिल हैं, बल्कि इसके पीछे जो सफ़ा ऑनलाइन फाउंडेशन है उसके ट्रस्टी भी हैं, और हमारे तमाम कामों में बतौर मशवरा, बतौर ताउन, बतौर गुफ्तगू हर वक्त वो मौजूद रहते हैं। उनके प्रोग्राम सफ़ा ऑनलाइन टीवी पे मुस्तकिल आते भी रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट तअस्सुरात पेश फरमाएँ। सहाफ़त की तरबियत सफ़ा ऑनलाइन की तरफ से बहुत बड़ा काम था। अल्लाह ताला ने इस काम को बेहतर अंदाज में अंजाम देने की तौफीक फरमाई, और इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप तमाम हजरात जो हमारे मेहमान हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने तरबियत दी, वो शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं, और हमारे बिरादर मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान साहब बेहद शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला उन्हें और हौसला दे, और सफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए इस तरह के काम को करने की मज़ीद तौफीक दे। अहम काम है, इस काम को जारी रहना चाहिए, इसकी कोशिश हो कि ये मुस्तकिल रहे, और इस तरह के प्रोग्राम बना करके मज़ीद तरबियत दी जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम इख्तिताम पे हैं, और हम सबों के मोहतरम उस्ताद और तलबा ने बार बार जिनका जिक्र किया, और मैंने अभी ख़ास तौर पे जिक्र किया था जनाब खालिद मुल्ला साहब का, कि जिनकी बड़ी इनायतें हमें हासिल रही और जिनसे बड़ा हौसला मिला, ज्वाइन कर चुके हैं हमें। मैं चाहूँगा जनाब खालिद मुल्ला साहब एक इख्तितामी और अलविदाई चंद जुमले हम तमाम तलबा के लिए आप बयान फरमा दें। अल्लाह जज़ा खैर दे। आप सब लोगों की कोशिशें हैं जो कबूल हों, और सबके सब काबिल मुबारकबाद हैं। तमाम तलबा को, तालिबात को, और तमाम भाई और बहनों को मुबारकबाद, और ये कोर्स भी मुबारक हो। और ख़ास तौर से जो मुंतज़मीन हैं, उन्होंने जो अच्छी खासी मेहनत की है, मशक्क़त की है। हम जानते हैं कि कई सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना, गेस्ट मुकर्रिर और सहाफ़ी, और उसके बाद में अपने तलबा, और फिर उसके बाद खुद अपनी मसरूफियात, और उसके साथ में मेहमानों के साथ राब्ता बना करके चीज़ें चलाना जो है एक बहुत ही
दिक्कत तलब बड़ा आजमाइशी काम होता है, उसके बावजूद भी बहुत खूबी इन्होंने किया है। हो सकता है कि हम आप लोगों की ज़रूरत के वक्त मुहैया हो पाए होंगे नहीं, बहरहाल ये है कि जब और जैसा जितना मौका मिला हम आपके साथ में जुड़े हैं। अब हम बसद एहतराम आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम और इस पूरे प्रोग्राम के सरपरस्त हज़रत मौलाना नज़रुल हफीज़ नदवी अज़हरी साहब दामद बरकातुहुम से गुजारिश करते हैं कि सदारती गुफ्तगू से हम तमाम तलबा व असातिज़ा को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अशरफ खल्क़िल्लाहि अजमईन। अज़ीज़ भाइयों बहनों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि दीनी जज्बे से, अखलाकी जज्बे से और अंदरूनी तहरीक से आपने ये ज़रूरी समझा कि वक्त के इस तकाज़े को पूरा करें, यानी हालात से वाक़फ़ियत और दूसरों तक पैगाम को पहुँचाना। ये बहुत बड़ा जज्बा है। अगर कोई शख्स इसमें कामयाब होता है और वो तहरीक कामयाब होती है कि अपने पढ़ने वालों को, सुनने वालों को के अंदर एक पाकीज़ा जज्बा पैदा कर दे और काम का की तहरीक पैदा कर दे, तो कामयाब है। कुरान मजीद ने इसी की तरफ इशारा किया है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं तो फिर हम उनको रास्ता दिखाते हैं। तो कोशिश ज़रूरी है। अस्सायु मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह। इंसान का काम यह है कि कोशिश करे और अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसको पूरा करने वाला है। एक बुनियादी बात तो ये है। और इसी के साथ जिन भाइयों ने, बहनों ने इसमें हिस्सा लिया, हम उनको इस कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि थोड़ी सी मेहनत से, जद्दोजहद से, तवज्जो से अल्लाह ताला ने उनको ये कामयाबी अता फरमाई। इसलिए हर शख्स को ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेकार पैदा नहीं किया है। हर इंसान जो पैदा होता है वो अपने साथ एक पैगाम लाता है और अल्लाह ताला ये सबूत देता है कि अल्लाह ताला उम्मीद रखता है, मायूस नहीं है इंसानों से। कोई ना कोई इंसान काम का आ जाएगा और एक इनकलाब जो है एक ही इंसान से होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जद्दोजहद करे, खुशी करे और उसमें सब कुछ लगा दे। मायूस नहीं होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारे अंदर कोई सलाहियत नहीं। मशहूर शेर है कि बलखुद नजर कुशा ही दामनी मरन दरसी ने तमाम नहादान। अपनी अंदर गौर करो और तुम अपने इखलास को या बेमायगी को ये न देखो कि हमारे अंदर कुछ नहीं, कोई सलाहियत नहीं। तुम्हारे अंदर चौधरी का चांद पोशीदा है, यानी अल्लाह ताला ने तुमको सलाहियत से तुम्हारा माल किया है, तुम उसको बाहर लाओ, इस्तेमाल करो। तो सलाहियत को पहचानना, उसको बाहर लाना, ये भी बहुत वक्त का तकाज़ा है। तो ये तहरीक जो पेश की गई सफा ऑनलाइन की, कि उसकी कामयाबी है कि बहुत से लोगों की सलाहियतों को उसने परखा और उसको सामने करने में कामयाबी हासिल की। ये आपकी भी कामयाबी है, देखने वालों की, इसमें हिस्सा लेने वालों की और सफा ऑनलाइन की भी, कि उसने इतने हीरे जवाहरात सामने पेश किए। आखिर में हम इस प्रोग्राम के मुंतज़िम आला और इस फिक्र के मुजिब मौलाना मुनव्वर सुल्तान को हम मुबारकबाद देते हैं। प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें शुक्रगुज़ार जिसका होना चाहिए, जिसने हमें तौफीक दी, तो हम सब दुआ करें। और ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम तलबा और तालिबात से कि प्रोग्राम के अख्तिताम पर 2 रकत नफिल नमाज ज़रूर पढ़ें, शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये काम मुकम्मल हुआ है और अल्लाह के फ़ज़ल से ही
आइंदा मज़ीद कामों की तौफीक होगी, मुझे भी और आप सबको भी। हम सब दुआओं के मुहताज हैं, लिहाजा हम उसके हुजूर हाजिर होंगे इसी तन्हाई के वक्त, और हम सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आइंदा मज़ीद रास्ते खुलेंगे, मज़ीद तौफीक़ात हम सबको मिलेगी और आइंदा मज़ीद कुछ कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम के तमाम शुरका, ख़ास तौर पे तमाम असातिज़ा, सदर मोहतरम और जो लोग नहीं शरीक हो सके, शरीक होना था, उन सब के शुक्रिया के साथ, दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा आखिरी नहीं है, ये हमारी आखिरी बात है। ये हमारा प्रोग्राम ये आखिरी न हो, इसके लिए आप सब भी दुआ कीजिए और हम सब भी दुआ करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम को ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।